اور اب کچھ بات کریں گے میاں والی کی۔ میاں والی میں کوئلے سے لوڈ مال گاڑی کے پٹری سے اترنے کا معاملہ۔ گزشتہ 48 گھنٹوں سے ملتان راولپنڈی ٹریک بند، تاحال 16 بوگیوں میں 6 بوگیاں ٹریک سے ہٹائی جا سکی۔ حکام نے ٹریک کلیئر کرنے کا وقت گزشتہ کل 5 بجے تک دیا تھا۔ ٹریک بند ہونے کے باعث ٹرین پر سفر کرنے والے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ اسی پر بات کریں گے اختر مجاز سے۔ اختر، بتائیے گا مزید کتنا وقت درکار ہے؟ جی بالکل، میاں والی کی حدود میں جو مال گاڑی کوئلے سے لوڈ تھی اس کے گرنے کا جو معاملہ ہے گزشتہ 48 گھنٹوں سے حل نہ ہو سکا۔ 48 گھنٹوں سے ملتان راولپنڈی ٹریک جو ہے بلاک ہے، اس کو کلیئر نہیں کروایا جا سکا۔ 16 بوگیاں جو ہیں پٹری سے اتر چکی تھیں اور اس وقت تک 6 بوگیوں کو پٹری سے ہٹایا جا سکا ہے اور جو ٹریک ہے اس کو کلیئر کیا گیا ہے۔ بقیہ جو 10 بوگیاں ہیں ابھی تک ٹریک پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے میہر ایکسپریس پر سفر کرنے والے جو مسافر ہیں وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہیں، کیونکہ آج تیسرے روز بھی میہر ایکسپریس جو ہے اس ٹریک سے نہیں گزر سکے گی۔ حکام کی جانب سے کہا گیا تھا، کل 5 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا جو گزر چکا ہے، کل 5 بجے بھی ٹریک جو ہے کلیئر نہیں ہوا اور اس وقت تک بھی ٹریک کلیئر نہیں ہو سکا۔ اور جو صورتحال ہے جہاں پہ جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کی کارکردگی اور ان کی کارروائی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر 48 گھنٹوں میں 6 بوگیاں ہٹائی گئی ہیں تو مزید 48 گھنٹے دیگر 6 بوگیوں کو ہٹانے پہ صرف ہو سکتے ہیں اور مزید جو 35 سے 36 گھنٹے جو ہیں 4 بوگیوں کو ہٹانے پہ لگ سکتے ہیں۔ جب یہ بوگیاں ہٹیں گی یہاں سے ٹریک کلیئر ہوگا تو جہاں سے میہر ایکسپریس گزر سکے گی۔ تب ٹریک کلیئر ہوگا جب بوگیاں ہٹیں گی۔ اختر مجاز، آپ کا شکریہ۔ ملتان ڈویژن میں بڑھتے ٹرین حادثات کا معاملہ، روہی نے حادثات بڑھنے کی وجوہات کا سراغ لگا لیا۔ ریلوے ملتان ڈویژن افسران اور ہیڈ کوارٹر افسران کی سالانہ ٹریک انسپیکشن میں عدم دلچسپی، 3 بار ٹریک انسپیکشن شیڈول کو کینسل کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے آپ کو مزید بتائیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں گوہر رحمان، ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں۔ جی گوہر، بتائیے گا۔ جی بالکل، ریلوے ملتان ڈویژن میں ٹرین حادثات رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ آئے روز جو ٹرین حادثات ہیں ان کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ روہی کی جانب سے پتہ لگا لیا گیا ہے کہ ٹرین حادثات کی بڑی وجہ کیا ہے۔ گزشتہ روز کی اگر بات کی جائے تو میاں والی کے قریب جو مال بردار گاڑی تھی اس کی 16 بوگیاں پٹری سے اتر گئی، جس کے باعث ملتان تا راولپنڈی جو ٹریک ہے وہ متاثر رہا اور کئی ٹرینیں بھی ان کو کینسل کیا گیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آئے روز جو ٹرین حادثات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ریلوے ملتان کے آفس کی جانب سے اور جو خاص طور پر اگر بات کی جائے تو ریلوے ہیڈ کوارٹر کی جانب سے سالانہ انسپیکشن کی جاتی ہے پٹریوں کے حوالے سے، اس کا شیڈول 3 مرتبہ کینسل کیا جا چکا ہے اور جو سالانہ انسپیکشن ہے 2021 کی وہ ابھی تک نہیں کی جاتی ہے۔ عام طور پر اگر بات کی جائے تو سالانہ انسپیکشن ستمبر اور دسمبر کے مہینے میں ہوا کرتی ہے، لیکن اب جو ہے مارچ آنے کے قریب ہے، ابھی تک جو ہے انسپیکشن نہیں کی گئی ہے۔ اس حال سے جو پٹریوں کے ابھی تک انسپیکشن نہیں کی گئی ہے۔ بہت شکریہ گوہر رحمان، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ویژن کے مطابق پنجاب بھر میں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت ضلع، ڈویژن اور صوبائی سطح پر مقابلے منعقد کیے جائیں گے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے الشبا سے۔ الشبا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی ہدایت کے مطابق جنوبی پنجاب میں بھی ٹیلنٹ ہنٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس میں مختلف مقابلے ہوں گے جس میں 15 سال سے لے کے 35 سال تک کے افراد حصہ لے سکتے ہیں۔ مزید میرے ساتھ آرٹس کونسل کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر زاہد اقبال اور ملتان کے ٹیلنٹ ہنٹ کے فوکل پرسن موجود ہیں۔ ان سے جان لیتے ہیں کہ کون کون سے کمپٹیشنز ہوں گے اور کب تک رجسٹریشن جو ہے جاری رہے گی۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ویژن کے مطابق یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے جس کا بیسک مقصد فن کو اور ادب کو فروغ دینا ہے۔ اس میں بیسیکلی یہ پروگرام شروع ہونا ہے اضلاع کی سطح سے، ڈسٹرکٹ لیول سے شروع ہونا ہے۔ ڈسٹرکٹ میں ہمارے پاس موسیقی کا مقابلہ ہے، ادب کا مقابلہ ہے، ادب میں شاعری اور افسانہ نگاری دونوں کے مقابلے ہوں گے۔ اسی طرح سے مصوری کا مقابلہ ہوگا ڈسٹرکٹ لیول پہ۔ ڈسٹرکٹ لیول کے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں وہ ڈویژنل لیول پہ کمپیٹ کریں گے اور ڈویژنل لیول کے جو ونرز ہوں گے وہ پروونشل لیول پہ کمپیٹ کریں گے۔ پھر ڈویژنل لیول پہ 2 اور کیٹیگریز ایڈ ہو جائیں گے، جس میں ایک دستکاری یا کرافٹس ہے اور اس کے ساتھ ڈاکومنٹری یا شارٹ فلم میکنگ ہے۔ تو یہ جو
डिस्ट्रिक्ट लेवल के विनर्स हैं वो डिवीजन पे आएंगे और डिवीजन लेवल के विनर्स जो हैं वो प्रोविंशियल लेवल पे compete करेंगे। इसकी रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार ये है कि हमारे फेसबुक पेज पे मुल्तान आर्ट्स काउंसिल मुल्तान के नाम से फेसबुक पेज है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड किए जा सकते हैं। इसके अलावा उसके साथ साथ हमने गूगल फॉर्म का भी लिंक दिया हुआ है, वो ऑनलाइन जो दूर दराज के लोग हैं या बेशक मुल्तान के हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कंपटीशन वाले दिन वो बेशक हमें हार्ड कॉपी में सबमिट करा सकते हैं। ये बेसिकली लोगों की कन्वीनियंस के लिए गूगल फॉर्म हमने जनरेट किया और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है। इसमें सिर्फ एक कैद है कि जो पार्टिसिपेंट है वो मुताल्लिका ज़िले का होना चाहिए, उसका डोमिसाइल मुताल्लिका ज़िले का होना चाहिए और उम्र की कैद है वो 15 से 35 साल है, इसमें एज लिमिट। जी 15 से 35 अप्लाई किया जा सकता है। अलिशबा, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से लापता सियासी कारकुनान के हक में मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन पार्टी परचम थामे अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है सरदार अली खान। जी सरदार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान प्रेस क्लब के सामने अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से जो है वो मिसिंग पर्सन के हवाले से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और इस वक्त कारकुनों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और इस हवाले से नारेबाजी भी की जा रही है और पार्टी परचम जो है वो भी अपने साथ लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ मरकजी रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा, मिसिंग पर्सन के हवाले से एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, क्या मुतालबा करेंगे? हम यही मुतालबा करेंगे कि पाकिस्तान में कई अशरों से जो भी सियासी कारकुन है जो हक और सच की बात करता है उसको अगवा कर लिया जाता है और इससे अवाम पर और मुल्क पर पूरी दुनिया में गलत असर पड़ता है। पाकिस्तान इस हवाले से पूरी दुनिया में एक अच्छी निगाह से नहीं देखा जा रहा कि यहाँ पे जो माशी हकूक़ हैं, अवाम के सियासी हकूक़ हैं, उसका बेदर्दी से पामाल किया जा रहा है और ख़ुसूसी तौर पर जो भी शख्स यहाँ पर हक और सच की बात करता है उसको अगवा कर लिया जाता है। इसी हवाले से आज हमारा जो एहतजाज है वो असद खान अचकज़ई साहब के हवाले से है। उनको 6 माह से अगवा किया गया है जो किसी तौर भी सही नहीं है और इससे अवाम में एक मायूसी फैलती है, खौफ और हरास पैदा होता है। हकूक़, सियासी और माशी हकूक़ जो हैं वो पामाल किए जा रहे हैं। कुछ दीगर कायदीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा क्या मुतालबा करेंगे और क्या कहेंगे? आज एहतजाज कर रहे हैं तमाम मिसिंग पर्सन और बिलखसूस असद खान अचकज़ई की उस पर रिहाई पर आना मुतालबा कर रहे हैं और हम ये मुतालबा करते हैं कि तमाम फिलफौर मिसिंग पर्सन को बाहिफाजत वापस लाया जाए और खास तौर पर असद खान अचकज़ई को बाहिफाजत वापस लाया जाए। और मुतालबा किया जा रहा है कि मुतालबात किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बिहाड़ी के नवाही इलाका लुटन के मौसा माहौल में यहाँ पर महकमा नहार की गैर मुनसिफाना कार्रवाइयों के खिलाफ किसानों का एहतजाज जारी है। इस एहतजाज के हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं हाफिज साले मोहम्मद। जी बिल्कुल, एक तरफ पूरे पंजाब के अंदर जिले इंतजामिया जो है वो कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां किए हुए हैं ताकि जो है वो सरकारी रकबा वागजार करवाया जा सके, लेकिन ऐसे ही बिहाड़ी का ये नवाही इलाका है जहाँ पे किसान सरापा एहतजाज है, उन्हें बगैर किसी नोटिस के जो है उनकी जमीनों के ऊपर खड़ी फसलों को इस वक्त जो है खत्म किया जा रहा है। इस वक्त किसान हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा, आप ये बताएं ये रकबा किन का है और किस हवाले से इसको जो है वो खत्म किया जा रहा है? जी देखें, ये रकबा गवर्नमेंट का है। हमारे पास 40 साल से हम इसे काश्त कर रहे हैं, तो अब बगैर नोटिस के उन्होंने हमें कहा है कि ये रकबा खाली करें। फसलें तैयार खड़ी हैं, हमारी तो साल भर की रोजी रोटी यही है हमारे बच्चों की, तो अब हमें बगैर नोटिस के कह रहे हैं कि ये रकबा खाली करें। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये रकबा हुकूमत की तरफ से नहीं बल्कि चंद बासर अफराद की तरफ से ऊपर से अथॉरिटी को अप्रोच करके हमारे पास भेजा जा रहा है कि ये रकबा खाली करवाएं और हम लेना चाहते हैं। ये अभी नए ऐसी तैनात हुए हैं अदील कल्ला साहब, वो अपनी क्या कहते हैं अथॉरिटी को बरोकार ला कर यहाँ एक्सीएन और एसडीओ को भेजते हैं और हमारे ऊपर जो है हमें जलील कर रहे हैं, हमारी फसलें खराब कर रहे हैं। तो हमारे पास ये 40 साल से है, तो हुकूमत से हम ये कहते हैं कि उनकी जो पॉलिसी है हम वो मानने को तैयार हैं। अगर इस तरह करते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो फिर सारे जिनके पास भी सरकारी रकबा है जो इसको काश्त कर रहे हैं सबको फसलें क्रॉप करें। जी बिल्कुल, जो है वो अगर किसान खासे परेशान हैं। हाफिज साले, आपका शुक्रिया। कोट अद्दू में आटे की शदीद किल्लत का सामना है। सरकारी स्टॉल्स पर बुजुर्ग शहरी और खवातीन का रश लग गया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे तैमूर अथर से। जी तैमूर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इकबाल पार्क कोट अद्दू शहर के लिए। शहरियों को सरकारी आटा फराम किया जा रहा है। एक स्टॉल लगाया हुआ है, पूरे सिटी में ये एक स्टॉल, और यहाँ पर ये सूरत हाल है कि यहाँ पर लंबी कतारें लगे हुए हैं। खवातीन
धूप में बैठ के इंतजार कर रही हैं और बुजुर्ग जो शहरी हैं वो भी जमीन पर बैठ गए सिर्फ एक आटे का थैला लेने के लिए इंतजार किया जा रहा है। यहां पर वो लोग भी मौजूद हैं जिनको 3 से 4 रोज हो गए हैं, लेकिन उनको आटा नहीं फराहम किया जा रहा। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये इल्जाम आयद किया जा रहा है कि जो सिफारशी हैं या किसी अफसर का फोन करा देते हैं तो उनको आटा फराहम किया जा रहा है। गरीब लोगों का मजाक किया जा रहा है, सारा दिन लाइनों में लगे रहते हैं और उसके बाद बगैर आटा लिया चले जाते हैं। मार्केट में आटा नहीं मिल रहा, एक स्टॉल लगाया गया और वहां पर भी लोगों को टाइम पर आटा नहीं मिलता। मेरे से यहाँ के कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप मुझे बताइएगा कितने रोज हो गए हैं आपको आटा लेने के लिए? एक आटे का थैला लेना था, कितने दिन हो गए हैं, क्यों नहीं दिया जा रहा? 8 दिन हो गए। आसान है, खाली वालों ने सवेरे सवेरे चक्कर लावे ने सब आटा नहीं मिलता। असा हम खुदकशी करने तो तैयार हैं। बस असा 5 बंदे असा को 4 बार थी असा चावल खाने खड़े हैं। असा गरीब बंदे 7 बार मजदूरी करने मतलब ये अंडे शंडे बेचने सारे वही मजदूरी नहीं बनती पई, लेकिन असा खुदकशी करने तैयार हैं। हुकूमत आप जाने, लेकिन असा परेशान है। बस चाचा जी आप मुझे बताइए। हम परेशान हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर अतर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान में सनतकार और बड़े ताजरों के टैक्स मसाइल के हवाले से खुली कचहरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रेवेन्यू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है अमजद मलिक। जी अमजद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आज फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रीजनल टैक्स ऑफिस की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, जिसकी सदारत बाकायदा तौर पर जो चीफ कमिश्नर हैं आबिद रजा बोदला साहब और इसके साथ साथ जो कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू हैं मिसिज ज़ायदा सरफराज भी इन्होंने शिरकत की है और बाकायदा तौर पर FBR के दीगर अफसरान भी शरीक थे। और साथ साथ मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर ख्वाजा सलाहुद्दीन और दीगर जो मेंबरान हैं, बड़े ताजिर हैं जनूबी पंजाब के मुल्तान के, उन्होंने भी शिरकत की। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुल्तान रीजनल टैक्स ऑफिस के कमिश्नर। सर बताइएगा क्या कहेंगे, आज एक अहम जो खुली कचहरी का यहाँ पे इनेकाद भी किया गया है, रिफंड के इशूज से दीगर इशूज हैं जो मुल्तान के स्पेशली जनूबी पंजाब के बड़े ताजिर हैं, किस तरह इनके मसाइल जो हैं वो हल किए जाएंगे? देखिए जी, अब आपने सारी प्रोसीडिंग देखी हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, फाइनेंस मिनिस्टर हफीज शेख साहब, चेयरमैन FBR साहब और मेंबर IR ऑपरेशंस, सबकी तरफ से इतनी वाज़ेह हिदायत हैं कि जी ताजरों के मसाइल उनकी दहलीज पर जाके हल करने। दरवाजे वैसे खोले हुए हैं और ई कचहरी और खुली कचहरी, इन दोनों कॉन्सेप्ट को कि अगर कोई टेलीफोन पे भी बात करना चाहे तो आए। और रिफंड्स की ही ज़्यादा मसाइल होते थे या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जिस तरह बात हुई है, तो उसके लिए जिस तरह गवर्नमेंट कोशिशें हैं तो उनकी पूरी टीम मुतहर्रिक है इस वक्त। और इंशाल्लाह अब बहुत सारे मसाइल खास तौर पर रिफंड्स के उनके हल हो चुके हैं और अगर कोई छोटे मोटे हैं बल्कि हमने 2020 के भी उनको रिफंड दे दिए हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे चीफ कमिश्नर मुल्तान और साथ ही मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ख्वाजा सलाहुद्दीन साहब। सर बताइएगा, एक बड़े अरसे बाद खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, क्या समझते हैं कि हमेशा FBR की जानिब से जो नोटिस भेज दिया जाता है टैक्स का, ताजिर बहुत परेशान होते हैं, किस तरह के इनके जो मसाइल हैं वो हल किए गए हैं? ओपन हाउस सेशन हुआ, ओपन में मेरे तमाम दोस्त, मेरे ताजिर बरादरी ने क्वेश्चन आंसर किए और जो नेट शेल है वो है कनेक्टिविटी। और ये जब हम आपस में मिलेंगे, कनेक्ट करेंगे, मसाइल से आगाह करेंगे, तो जिस तरह से आज इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्ट किया, मैं बड़ा उसको अप्रिशिएट भी करता हूं और एक्नॉलेज भी करता हूं। और इंशाल्लाह मैंने अपनी तरफ से भी और चैम्बर के तमाम मौजूद मेंबरान की तरफ से, इंडस्ट्रियल की तरफ से ये यकीन दहानी कराई है कि जिस तरह से आपका एटीट्यूड है, इंशाल्लाह हम आपके साथ 2 स्टेप्स आगे जाएंगे। साथ ही मौजूद हैं 2 स्टेप्स आगे जाएंगे। बहुत शुक्रिया। अमजद मलिक हमारे साथ मौजूद थे। ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्ग मर्द और खवातीन से खुशियां बांटने के लिए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से तोहफे और कपड़े भेजे गए। इसी हवाले से बात करेंगे सुहेरा तारिक से। सुहेरा बताइएगा। ओल्ड एज होम में मुकीम बुजुर्ग मर्द और खवातीन जो अपने घर वालों से, अपने बच्चों से दूर हैं, उनके चेहरों पर खुशी की बहार लाने के लिए वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से आज तोहफे भेजे गए हैं। इनको कपड़े और चादरें जो हैं वो तकसीम की गई हैं। इस मौके पर यहाँ पर इंचार्ज ओल्ड एज होम कोमल मौजूद हैं, उसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुजम्मिल यार साहब हैं और उसके साथ साथ शेख फजल इलाही साहब यहाँ पर मौजूद हैं। पहले मुजम्मिल साहब से बात करेंगे कि तोहफे जो हैं वो तकसीम किए गए हैं, क्या मकसद था? मदीना की जो फ्लाई रियासत है या वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन और उसकी एग्जीक्यूशन के लिए अभी आज चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इनके लिए तोहफे भेजे हैं, जिसमें कपड़े चादरें हैं। तो एक तो हमें मौका मिला कि हम इन बुजुर्गों के साथ आके बैठे, गपशप लगाई, और दूसरा ये है कि उनका एक जो है ना बड़ा
फेयर और बड़ा एक आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट एक जेस्चर इंतजामिया का, स्पेशली चीफ मिनिस्टर का, तो वो इन तक पहुंचाया, उनकी नई ख्वाहिशात पहुंचाई हैं। तो हमारे लिए और इनके लिए चीफ मिनिस्टर की तरफ से जो ये जेस्चर है उसको हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। इस जेस्चर को अप्रिशिएट करते हैं। बहुत शुक्रिया सुहेरा, तफसीलात से आगाह कर रही थी। खबर शामिल करेंगे लिया से। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब की मेंबरान असम्बली के साथ मीटिंग। डीपीओ ऑफिस लिया में मुनक्किदा मीटिंग में एमएनए और एमपीएस ने शिरकत की। एमएनए मलिक नियाज झक्कड़, एमपीए रफाकत गिलानी, शहाबुद्दीन मौजूद। मीटिंग में एमपीए ताहिर रंधावा, साबिक जिला चेयरमैन मलिक उमर अली ने भी शिरकत की, जबकि इस वक्त एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब ने मेंबरान असम्बली से मामलात पर खुसूसी गुफ्तगू भी की। बात करेंगे बहावलपुर की। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक जनूबी पंजाब की ज़ेर सदारत जायजा इजलास में डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक डॉक्टर मंसूर अहमद की शिरकत। जनूबी पंजाब के तीनों डिवीजन से डायरेक्टर्स और लाइव स्टॉक फार्म्स के इंचार्ज शरीक हुए। जनूबी पंजाब में लाइव स्टॉक की मुख्तलिफ स्कीम्स पर गुफ्तगू। हमें लाइव स्टॉक में असल ब्रीड पर फोकस करना है, सेक्रेटरी लाइव स्टॉक। और जानवरों की दूध और गोश्त की पैदावार के लिए लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं। जनूबी पंजाब को मुंह खुर की बीमारी से मुकम्मल पाक करना है। हुकूमत पंजाब ने सब्सिडी पर फराहम किए जाने वाले ज़रूरी आलात हासिल करने की दरखास्तों की आखिरी तारीख 20 फरवरी से बढ़ाकर 2 मार्च कर दी। मजीद बता रहे हैं अतर लाशारी जी। अतर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ऐसे की बात करें ज़राअत के मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से, ख़ासतौर पर पंजाब हुकूमत जो चला रही है उसमें सब्सिडाइज्ड जो इम्प्लीमेंट्स हैं उनकी तारीख जो है उसमें भी कुछ दिनों का इजाफा किया गया है दरखास्तें देने की कि जो सब्सिडी के ऊपर ज़रूरी आलात मिलने थे वो। उसके अलावा कुछ नुमाइशी प्लाट हैं उनके ऊपर कुछ पैसे जो हैं वो दिए जा रहे हैं, उनकी दरखास्तें, उसी के ऊपर बात करेंगे। गुज़श्ता सालों में क्या मिला और इस दफ़ा क्या मिलने जा रहा है, इसी के ऊपर बात करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर बहावलपुर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हाफिज शफीक साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सर फरमाइएगा, दरखास्तों की आखिरी तारीख है उसकी तादाद बढ़ी है, तारीख क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म के ज़रिए प्रोग्राम के तहत हमारी जो मेजर फसलात हैं उसमें गंदम, उसमें कमाद और ऑयल सीड, इनके प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके तहत ज़िम्मेदारों को नुमाइशी प्लाट लगाए जा रहे हैं ज़िम्मेदारों के खेतों में, और इसके साथ साथ 50% सब्सिडी पे उनको ज़रूरी आलात दिए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ फार्मर डेज किए जा रहे हैं, और नुमाइशी प्लाटों के साथ साथ उनके पैदावारी मुकाबला जात भी हैं। तो अभी हमारे गंदम के और ऑयल सीड के जो अपने ज़रूरी आलात के लिए दरख्वास्तें हम ले रहे हैं, गंदम के लिए डेट एक्सटेंड करके 2 मार्च कर दी गई है। तो हमारी ज़िम्मेदार भाइयों से गुजारिश है कि इन स्कीमों में वो दरख्वास्तें ज़्यादा से ज़्यादा दें ताकि हम अपनी ज़राअत को ज़्यादा से ज़्यादा मैकेनाइज कर सकें और अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा साइंसी बुनियादों से कर सकें। तो इसमें जो हमारे लास्ट ईयर के भी ये स्कीम चली थी उसमें ज़िम्मेदारों को आलात दिए गए, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आए थे कोविड की वजह से कि पेमेंट कुछ डिले हुई हैं, लेकिन वो अंडर प्रोसेस हैं, उनको वो भी दी जा रही हैं। अंडर प्रोसेस है वो भी उनको दी जा रही है। बहुत शुक्रिया तरला सारी। हमारे साथ मौजूद इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स को बैरून मुल्क स्कॉलरशिप के हसूल में सहूलत फराहम करने और स्कॉलरशिप की आगाही देने के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार के अहवाल से हमें आगाह कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। जी बिल्कुल, वो तमाम तलबा तालिबात जिन्होंने स्कॉलरशिप के ऊपर बैरून मुल्क जाना होता है और उनको एक शिकवा सामने आता है कि हमें तो उन स्कॉलरशिप्स का पता ही नहीं चलता, और अगर वो स्कॉलरशिप्स आते हैं उनको ऊपर अप्लाई कैसे करना है, अवेयरनेस क्या है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से उनको गाइडलाइन की कमी काफ़ी हद तक रह जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए और तलबा के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करने के लिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जानिब से आज एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें वो तमाम स्कॉलरशिप जो कि बैरून मुल्क की थी उस हवाले से एमफिल स्कॉलर्स, पीएचडी स्कॉलर्स, जो एसोसिएट लेक्चरर्स हैं, उन तमाम को इस हवाले से बताया गया है। शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि कितना फ़ायदा होगा हमारे जो स्कॉलर्स हैं यहाँ पर, उनको इन तमाम तर एक्टिविटीज से, इन सेमिनार से वो किस तरह अप्लाई कर सकेंगे और उनको किस तरह स्कॉलरशिप मिल सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आपने इसको कवर किया है। बेसिकली हमारा ये डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल लिंकेजेस,
और ये डायरेक्टरेट बनाने का मकसद ये है कि हम IUB के जो स्टूडेंट्स हैं और फैकल्टी मेंबर्स हैं इनको हम बाहर कैसे भेज सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आते हैं और स्टूडेंट जैसे आपने बजा कहा कि उनको मालूम नहीं होता कि इसका प्रोसीजर क्या है, अप्लाई कैसे करना है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। तो हमने इस चीज़ को रियलाइज करते हुए कि हम अपने खिते के स्टूडेंट्स को बाहर भेजें, अमेरिका भेजें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजें। शहरियों को एजुकेट करना हमारा मकसद है। तैयब, आपका शुक्रिया। दूसरी जानिब रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में बहार की दस्तक देने वाले रंग बिरंगे फूलों की नुमाइश लगा दी गई। इसी हवाले से मजीद जाने के आसिम सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। बहार के मौसम पर दस्तक रंग बिरंग खिले हुए फूल देते हैं और ये रंग बिरंगे फूलों को इकट्ठा किया गया ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में, जहां पर फ्लावर एग्जीबिशन का इनकाद किया गया। इस फ्लावर एग्जीबिशन में मुख्तलिफ किस्म के रंगों के और मुख्तलिफ अकसाम के जो फूल हैं वो रखे गए हैं, जो खुशनुमा फूल हैं जो देखने वालों को अपने शहर में घेर रहे हैं। आप लोगों ने क्या देखा यहाँ पर, किस तरह की खूबसूरत लगी फूलों की नुमाइश? तो काफी खूबसूरत थी, हर एक ने अपने लिहाज से अच्छा नया इनोवेटिव आइडियाज दिए। जिस तरह हमने तितली बनाई है, उन्होंने स्नो माउंटेन बनाया है, और वहां देखा जाए तो उन्होंने बलून से की है। अच्छे तरीके हैं फूलों से नई सजावट करने के। इसे हम लोग आगे यूनिवर्सिटी में भी ये सारे फूल रखेंगे और इन्हीं से मजीद सजावट करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी को। तो खूबसूरत बनाया जाएगा फूलों से। फूल क्या पैगाम देते होते हैं? फूल पीस का एक साइन भी है कि मतलब सबको कलरफुल लाइफ, मतलब लड़ाई झगड़ों से भी बच के एक पीसफुल लाइफ गुजारनी चाहिए। और बहार की अलामत। आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको कौन से फूल सबसे अच्छे लगे, क्या कलर स्कीम लगी फूलों की? रेड रोज जिस तरह के हमेशा अच्छा समझा जाता है, बड़ा प्यारा कलर है, और गेंदे उसके साथ कॉम्बिनेशन, और बाकी जितने भी इस मौसम के फूल हैं सब एक बड़ा खूबसूरत सा और एक बड़ा दिलकश सा मंजर दे देते हैं। इस वजह से हमने इन सारों को डेकोरेट किया, बल्कि हमने लिखा भी, हमारी जो साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं उसके DNA का स्ट्रक्चर बनाया, साइटोसिन का स्ट्रक्चर बनाया। तो ये सब कुछ हमने पढ़ाई को भी बीच में ही मिक्स कर दिया है। पढ़ाई को भी बीच में मिक्स कर दिया। हर किसी डिपार्टमेंट अपने अपने स्टॉल जरूर लगाए हैं और बच्चों की मेहनत भी है, खूबसूरती भी है, क्योंकि बहार के रंग फूलों के बगैर नामुकम्मल है और फूल ही बहार के रंगों की असल बताते हैं कि बहार की आमद आ चुकी है। और इस खूबसूरती को, इस फ्लावर शो को बहार फूलों के बगैर अधूरी है। आसिम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।